शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन दे राखो हो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, ज्यों ज्यों मनुख धर्म के मार्ग ते वधदा जांदा है, अगे अगे चलता रहिंदा है, अंत दे विच वो इस अवस्था ते अपड़ जाता है जिथे जाके उन्होंने पता लग जाता है मैं कुछ कर नहीं रहा, ये दुनिया में कुछ कोई कर नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है। जिवें बाहरी दुनिया दे विच किसी काम नूं पूरा करन दे लई मंजिलां ने, सीढ़ियां ने, एक मकान दे उत्ते चढ़ना होए उहदियां वख-वख पौड़ियां ने, पर जो पहली पौड़ी के उत्ते असीं खलोने हैं उहदा आनंद कोई होर हुंदा है, दूजी दा आनंद कोई होर हुंदा है। जिवें मनुख लास्ट वाली पौड़ी ते छत ते पहुँचता है, उत्थों दा वेखण दा, उत्थों दी आबो हवा दा आनंद कुछ होर हुंदा है। एवें परमेश्वर दे मार्ग दे जिहड़ियां पौड़ियां ने, गुरु महाराज जी ने इनू 5 खंडां विच भी बयान किया है। और ज्यों ज्यों मनुख चलता है, जिमें जिमें उहदी सुरत चलती है, उहदा आनंद भी वधदा जाता है, उहदे अंदर रहस्य भी वधदा जाता है। जिमें मनुख लास्ट पौड़ी ते पहुँचता है, उसनूं ये पता लग जाता है मैं कुछ कर नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है। जिन महाराज ने बाणी दे विच भी कहा, असां जोर नाही किश कर हम सकह, साडे कोल कोई जोर नहीं असीं कुछ कर सकीए। जपजी साहिब की बाणी में महाराज जी ने यह भी कहा, जोर ना जुगती ज्ञान विचार। जिथे महाराज ने कहा जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सोर। ना तो किसी नूं राज मिले, ये जोर नाल नहीं मिलिया, बख्शिश नाल मिलिया। किसी नूं धन प्राप्त होया, जोर नाल नहीं होया, बख्शिश है। पर मनुख अपने शरीर के द्वारा कर्म करता है, कर्म करन करके इस नूं थोड़ा भुलेखा लगता है मैं कुछ कर रहा। साध संगत, दुनिया के उत्ते धन इकट्ठा करन दे लई शरीर का हष्ट पुष्ट होना बहुत जरूरी है। अखां ठीक होनियां चाहिदियां ने, हथ पैर ठीक होने चाहिए ने, जिहवा ठीक होनी चाहिए है। रब नूं परमेश्वर नूं मिलण दे लई एक ही मार्ग है, वह मार्ग है सुरती का। मनुख की सुरत टिकाणे होनी चाहिए है, मनुख की समझ टिकाणे होनी चाहिए।
ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨੀਸਾਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਜਿਹਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਦੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਸੀਦੇ ਲਿਖਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਕਲਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡ ਆਖਾ ਨਾ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਸੁਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸ ਹੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ।
ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਣਮੱਤਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਜਪਦਿਆਂ 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 ਹੰਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬੇਖਬਰ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 99% ਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰੋੜਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋਉ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਹ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਚੀਤ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 99% ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਤੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਵਗੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਦਾਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ
किसी के बारे कुछ सुनता है, सुन के ही फैसला ले लेंदा बस। किसी ने इनू कह दिता तेरा गवांढी तेरे बारे माड़ा कह रहा सी, उन्होंने पुछया भी नहीं, उहदे कोल जाणिया भी नहीं, पहले ही फैसला ले लिया। ये मनुख की आदत है। इवें मनुख धर्म की दुनिया में भी करता है। किसी ने इनू धर्म बारे दसिया, फैसला नाल ही करने का होएगा ऐसा। गुरबाणी कहती नहीं, सुन वड्डा आख्या सब कोए, के वड्ड वड्डा, वो है किन्ना वड्डा, डीठा हो, वेख के ही पता लगेगा, बिना वेखे नहीं। बिना वेखे किसी भी चीज़ का ना माप लगता है, ना तोल लगता है। साध संगत परमात्मा नूं जदों तई जानन दे राह ते नहीं तुरिया, उदों तई हजे तई इन्हें कुछ भी नहीं जानिया। और विद्वान ये मनते ने उन्होंने जान जान के यही पता लग सकता है, वो जानिया नहीं जा सकता। मनुख ने बाहरली दुनिया दे विच परमात्मा की खोज वास्ते दूरबीनां बनाईयां, चंद्रमा नूं खोजिया, तारिਆਂ नूं खोजिया, खोजिया नहीं हैगे सन पहले ही, वेखिया सिर्फ इंसान ने खोजिया तो कुछ भी नहीं। इस करके दुनिया ते सर्च नहीं है, रीसर्च है। इत्थे खोजिया नहीं कुछ भी जा सकता, हैगा पहला। मनुखी समझ समय समय मनुख की समझ वधदी है, लगता है आपां कह दिंदे आ फलाने साइंटिस्ट ने ये वाली खोज की है, नहीं वो खोजी नहीं है, उन्हें सिर्फ जानकारी हासिल की है तो पहले ही सी। जे असीं कह दी किसी ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की है, ए नहीं वो तो पहले ही सी, उन्हें तो सिर्फ जाने है। परमात्मा के राह ते जदों मनुख तुरिया, उन्हें जान के ये जानिया, उहदे बारे जानिया नहीं जा सकता। महाराज कहते ने जान के यही गल पता लगती है, होर कुछ भी नहीं। मैं आप जी नूं कई बारी कहा, दुनिया का वड्डा फिलोसफर सुकरात, उन्हें बुढ़ेपे दे विच आके ये कह दिता सी मैं रब बारे नहीं जानता। बचपन विच उहदे दावे सी मैं बहुत कुछ जानदा। जदों मनुख धर्म के राह ते तुरदा है, थोड़ी जी गुरबाणी पढ़ लैंदा है, वेद शास्त्र माड़े मोटे पढ़ लैंदा है, वो दावा कर बैठदा मैं बड़ा कुछ जानदा, मैनू आके पुछो। धर्म की सारी ठेकेदारी हुण मेरे कोल है, जिन्ना ज्ञान लैना मैनू पुछो, सारी मर्यादावां दा मैनू पता है। हजे वो काली है, बचपन में है। जिवें बचपन दे विच एक बच्चा कह दिंदा है मैं बहुत कुछ जानदा, बचपन दे विच एक बच्चा कह सकता है मैं बड़ा कुछ जानदा, हजे उसकी नादानी है। इस करके साध संगत दुनिया दे विच बिजनेसां दी गल चले, मनुख नहीं बोलता, रब की गल चलेगी सारे ही बोल लैणगे बड़ा वड्डा है, सारे ही। किते बाहर जाके रब की गल छेड़ लवो, सारे ही कह देंगे उहदा ये भी है, उहदा ये भी है। किसी एक नूं पुछ लो तेनू अनुभव होया नहीं, कोई पता नहीं कित्थे वो वसदा है। महाराज गुरबाणी कहते हैं सो दर के हाँ सो कर के हाँ, जित वह सर्व संभाले, हजे कोई पता नहीं। पर मनुख की जबान, मनुख की बुद्धि ये दावा कर बैठती है मैं जान गया हूँ। शायद उन्होंने ये दावा ही इनू परेशानी च भी लैके आउंदा है, इनू रब नाल जुड़न भी नहीं दिंदा, परमेश्वर बारे जानन भी नहीं दिंदा, कि इहदा सिर्फ दावा। कई बार मनुख कहे मैनू परमात्मा ते बड़ा विश्वास है, बस यदी ये गल ही इनू परमात्मा ते विश्वास नहीं होंदी। हुण गुरबाणी कहती है फिर उन्होंने जानिया किवें जा सकता है। महाराज कहते ने ए वड ऊंचा होवे, जिड्डा परमात्मा वड्डा है इड्डा ही कोई वड्डा होए, तिस ऊंचे कहो जाने सोए। ओ मनुख नूं जाने सोए, सोए का मतलब ओ मनुख। सोए इत्थे प्रोनाउन है, जिन्हों असी हिंदी दे विच सर्वनाम भी कहते हैं। सोए शब्द वो मनुख वास्ते वरत्या गया है, जेड़े मनुख ने उन्होंने जानना। ए वड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने। इस करके महाराज जी कहते हैं असी दुनिया दे विच बड़ी बड़ी छेती किसी को कह देने फलाना मनुख ते ब्रह्म ज्ञानी है। महाराज कहते ये डिग्री तू अपने कोलों किसी को ना दे, क्यों तू ब्रह्म ज्ञानी नहीं है।
ਜਾਂ तो जिन्हों तू आप कह रहे फलाना बड़ा तकड़ा संत है, पहला तेनों मनना पेगा तू भी संत है, तो उन्होंने कह सकता। कोई डॉक्टर है, असी जे उन्होंने है पिंड दे विच ही है, उन्हें 2 गोलियां दित्तियां ने, रब की किस्मत है, गोली ठीक लग गई है, जुकाम दूर हो गए। साडे पिंड वाला डॉक्टर बड़ा वड्डा है, इनू डॉक्टरी की समझ नहीं है, गोलियां किहड़ियां खादियां ने वो भी समझ नहीं, पर डॉक्टर की पबलिसिटी इन्हें फटाफट कर देनी है। एवं दुनिया के उत्ते पबलिसिटी मनुख की फटाफट हो जाती है। क्यों? मनुख नूं आप पता नहीं वो किड्डा वड्डा है, संत के गुण की ने, उहदे लक्षण की ने, इनू नहीं पता। किन्नी घाल कमाई है इनू नहीं पता। पर महाराज ने ताई गुरबाणी च गया, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, और कोई नहीं जान सकता। एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने, एवं थोड़ी ना जाना जाएगा। हुण महाराज जी अगे आपे कहंदे तू आपे गुप्ता आपे प्रगट आपे सब रंग मान है। हे परमात्मा तू आप ही गुप्त है सारे जियां च, आ प्रगट संसार ये भी तेरा ही है। इत्थे दुनिया ते जेड़े जेड़े काम ते तू किसी नूं लाया है उस काम ते लगे है। गुरबाणी दे सुखमणी साहब महाराज ने इसका बड़ा खुलासा किया। साध संगत सुखमणी साहब की बाणी जिन्नी छेती परमेश्वर की समझ दे देंदी है, इन्नी छेती चलो गुरबाणी तो सारी सौखी है, पर सुखमणी साहब की बाणी सरल है। वो सीधे शब्दों के महाराज ने बहुत कुछ लिखा। महाराज ने यह लिखिया, ये जिहड़ा संसार है ये उहदा ही रूप है। एक परमात्मा है, ये परमात्मा का रूप है। ये विच हुण कई प्रकार के लोग बनाए ने। ये कुछ फल खट्टे ने, कुछ मिठे ने। इस दुनिया दे विच दिन है, रात है। इस दुनिया दे विच सुख है, दुख है, ठंडा है, गर्म है। इस दुनिया दे विच दानव ने, मानव ने, राक्षस ने, देवते ने, सब कुछ इत्थे है। पर यह बनाया किन्ने है? राक्षस किन्ने? जे परमात्मा ने यही चंगा लगे सारे देवते ही बनते, वो बनाए ही देवते नहीं, ये उसकी खेड है। राक्षस भी उन्हें पालने ने, देवते भी उन्हें पालने ने। इस करके मनुख अपनी जिंदगी दे विच अपने आप नूं बदलण दा यतन करे, दुनिया नूं ना बदले, क्योंकि दुनिया चल रही है रब दे हुक्म, साडे हुक्म दे नाल वो नहीं बदलनी। मनुख अपने आप ते जोर लाए, अपने आप ते बदलण दी यतन करे। जिन्हों फरीद जी ने कहा, आप नड़े गिरीवान में सिर नीमा कर दो। दूजे नूं बदलण दी कोशिश ना करी। क्यों? किसी ने बदलना है, ये रब दी मेहर है। किसी नूं बदलण लई जो भी कोई बदल सकता है वो रब बदल सकता है। किसी नूं सीधे बन्ने लाना है, किसी नूं उड़ा के पुठे बन्ने ला देना है, ये रब है सारे बन्ने। उस तो बिना कोई नहीं। मैं फिर कह दिया, ये जिहड़ी गल है ये इवें समझ लो जिवें घर दे विच सीढ़ी लाई दी है, लास्ट डंडे ते जाके उत्थों दी हवा भी कुछ होर है, उत्थों दी वेखणी भी कुछ होर है। पहली पहली सीढ़ी ते मनुख नूं लगदा है मैं कुछ कर रहा, मैं कुछ कर सकदा, पर जिवें लास्ट डंडे ते पहुंचेगा कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ हो रहा है। दुनिया दे विच कोई कुछ कर नहीं रहा, सब कुछ हो रहा। ये जिहड़ा संसार है ये भी रब ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। वो आपे ही गुप्त है, आपे ही प्रगट है। ताई महाराज ने गुरबाणी दे विच मुड़ मुड़ के एक ही गल कही है। आपां जपजी साहिब पढ़ते हैं, महाराज अरदास भी करते हैं, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाए। महाराज तो परमेश्वर तो बार बार गुरु नानक साहब बेनती करते हैं, मेरे ते अपनी नज़र कर, क्यों? तेरी नज़र तो बगैर कुछ नहीं है। जो कुछ भी जिथे जिथे मनुख लगे है वो उन्हें अपने हुक्म चलाया है। कोई चोर है, कोई साध है, वह हुक्म है। और वो जे अपने हुक्म से आए चोरा नूं साध बना सकता है, अपनी मर्जी से आए। होया दुनिया में
परमात्मा ने अपनी मर्जी चाह के वेशवावां नूं संतनियां बना सकता है, पर जेड़े अपने आप दे विच कई संत साध बन जाते हैं उन्होंने थले भी डेग सकता, उहदी मर्जी है, उहदे हुक्म दे विच सारा कुछ चल रहा है। महाराज ने बाणी च किया, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना। इस करके गुरबाणी बार बार इनू कहती है, कदे हंकार ना करी, बस जिंदगी दे इहदा फरेज रखी। क्यों? जिस दिन तेनू अपनी शख्सियत का हंकार हो गया, उस दिन पिछला गेर लग जाना है। वड्डी शख्सियत ते जाके भी छोटा ही रही। क्यों? परमात्मा का हंकारियां नाल वैर रहे है। वैसे वो निर्वैर है, पर हंकारियां दे नाल उसदी मिलदी नहीं। जिवें ही मनुख अपनी शख्सियत का हंकार करेगा, नालों नाल वो थले आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा महाराज जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम एक साखी आती है भाई जोगे दी। भाई जोगे का विआह होने लगा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने चिट्ठी लिखी, उहदे विच लिखिया, जोगिया जेड़ा भी तू काम कर रहे हैं बस उत्थे ही छड़ के छेती आनंदपुर साहब आ जा। कहते विआह हो रहा सी, एक दो फेरे हो गए सन, लावां पढ़िया गई, उन्होंने चिट्ठी जाके विआह दे विच ही सिख ने दे दी। नालों नाल ही खड़ा हो गया, मैं अगे विआह नहीं कराना, क्यों गुरु का हुक्म आ गया, मैं हुण ही जाना। सारे लोग कहते हैं बड़ा वेखो किड्डा गुरु का किड्डा निष्ठा वाला सिख है, गुरु की पत्री पढ़ी है, जो भी काम कर रहे हैं उत्थे छड़ के आ जा, बड़ा निष्ठा वाला है। सारे लोग बड़ी सलोत करते हैं, चारे बन्ने ओदी बड़ी मान मर्यादा बनी है। पर कहते घरों चलिया, तुरदा तुरदा हंकार आ गया, कहते मेरे तो वड्डा सिख भी किते गुरु नूं मिलेगा, मेरे तो वड्डा सिख भी किते हुक्म मनन वाला मिलेगा, जिन्हें अपना विआह ही विच छड़ दिता। मां राह दे विच जा रहा सी, जांदिया जांदिया वेशवा दे शहर विचों निकलिया, उत्ते वेशवा खड़ी वेखी, मन नालों नाल बदल गया, चढ़ गया वेशवा दे कोठे। इतिहास दसदा है अगे एक मनुख बैठा सीढ़ियां दे उत्ते ही, उहनूं अंदर नहीं वड़न दिंदा दरवाजे दे, कहंदा वापस चल। सारी रात बीत गई, सवेरे अख खुली, मन कहना चल मना गुरु कोल चल गए। फिर आ गया थले जाके महाराज जी के कोल पहुंचया आनंदपुर साहब, कहते महाराज मैं आ गया। महाराज जी सारी संगत कहती है महाराज बड़ा बड़ा निष्ठा वाला सिख है। महाराज जी भाई जोगे नूं कहते, जोगा भी खलोता है। महाराज कहते जोगिया रात की बीती? कहते महाराज बचा लिया, मेरे अंदर दा हंकार सी, मेरे तो वड्डा सिख भी हो सकता है किते, पर साध संगत नहीं। बहुत वड्डे वड्डे लोग ने, बहुत वड्डी वड्डी महाराज बाणी के एक दू एक चढ़ंदियां, कौन जाना है मेरा नाम, एक तो एक चढ़ते ने, भगती करने वाले भी एक तो एक। महाराज ने बाणी किया, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, भगत भी असंखा ने, कोई कला नहीं है। पर मनुख नूं एक झोला है, जिन्ना मैं सही हाँ इन्ना कोई नहीं है, बस ये इनू है। ताई करके किते भी कोई गल हो जाए, ये अपनी गलती मनन नूं तैयार नहीं, हमेशा गलती दूजे दी करदा। मैं फिर कह दिया, मनुख नूं अपने गुण वेखदे ने, दूजे दे औगण वेखदे ने। मनुख दा सारा दिन ध्यान अपने गुणां वल हुंदा है, दूजे दे औगणां वल हुंदा है। इस करके अपने गुणां नूं वेखदे वेखदे इनू ये लगदा ही नहीं मेरे अंदर कोई औगण भी है। मनुख अपने आप नूं परिपूर्ण समझदा है, मेरे विच कोई गलती नहीं है, एवें समझदा है। पर गुरबाणी इनू दूजा कहंदी है, ये थोड़ी जी गुरु दे हुक्म तो उल्ट है। गुरबाणी कहंदी है तू दूजे दे गुण वेख, अपने औगण वेख। आप नड़े गिरीवान में अपने औगण वेख। और साध संगत बड़ा कर्मा वाला मनुख है, जिसनों अपने अंदर औगण विख जाते हैं, नहीं विखते नहीं।
अपने गुणा अपने अंदर झात मारीए। जे असी लोभ की गल करांगे अपना लोभ नहीं विखदा, क्रोध की गल करांगे अपने अंदर का क्रोध नहीं विखदा, अपने अंदर का हंकार नहीं विखदा। वैसे ज्यों ज्यों मनुख रब के राह ते तुरदा है, इनू अपने अंदरों ये विखना शुरू हो जाता है। उस दिन ये फिर एक कह दिंदा है, हम अवगुण भरे एक गुण है। उस दिन कहता, उस तो पहला नहीं। उवें मनुख उत्तों उत्तों तो कह दिंदा है, मैं बड़ा औगणा वाला है जी, मैं तो बहुत नीवा हाँ जी। कई मेरी आप जी ने कहा, उस नीवे नूं यह कह दईए तू है ही नीवा, नीवे तो वध के तू कुछ है ही नहीं, उस दिन गल पै जाएगा। मैं तो सेवादार हाँ जी, मैं गुरु घर का नौकर हाँ, उन्होंने यह कह दी नौकर तू उरा, इन्नी देर च गल विच पै जाएगा। मैनू नौकर किवें कह दिता, उवें वो कह दिंदा है। वो कहता मैं अपने मूँह तो कवां मैं नौकर हाँ, चल जाएगा, किसी ने मैनू नौकर नहीं कहना। मनुख कह दिंदा है असी तो गुरु घर दे कूकर हाँ जी, जे उन्हें कह दिए कूकर तू उरा, असी गुरु घर दे कुत्ते हाँ, जे उन्होंने कह दईए तू उरा, उन्होंने कूकर कह दईए, नालों नाल गल नूं पै जाएगा। ये एवें समझ लो गुरबाणी विच इनू भी बयान किया गया है। बाणी कहती है उहदा मन होर हुंदा है मुख होर, जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चे आ। हथ जुड़े ने अपने आप को उच्चा चुकन लई, हजे हथ जोड़ता है अपने आप को नीवें नहीं, नहीं हथ जोड़ागा लोग कहेंगे बड़ा नीवा है, हजे भी हंकार वधाउण वास्ते कर रहे हैं। इस करके बाणी ने कहा कई बारी मनुख दान भी करता है अपनी प्रतिष्ठा नूं वधाउण लई, कई बारी तीर्थां ते भी जाता है अपनी प्रतिष्ठा नूं वधाउण लई। बाणी कहती इस करके जिहड़ा कर्म अपने हंकार नूं वधाउण लई करदा है वो तो निफल ही चला गया। तीरथ वर्त अरदान कर मन में धरै गुमान, नानक नेह फल जात ते, नानक नेह फल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। जिवें हाथी नहाउंदा भी है, और नहाउणा किड्डा वड्डा कर्म है, किड्डी सोहनी गल है नहाउणा, शरीर साफ हुंदा है। हाथी नहा के बाहर आके अपने आप ते फिर राख पा लैंदा। उन्होंने ये पुछण लोकी तू नहाउणा ही क्यों सी जे उत्ते राख ही पाउणी सी, नहीं नहांदा इस तो चंगा। जे तू दान करना सी, दान करके भी हंकार विखाउणा सी, फिर नहीं करता, वही ठीक सी। तेरा कीता होया दान व्यर्थ चला गया। कई बार कीता होया जप व्यर्थ चला जाता है। मनुख कह दिंदा मैं तो इन्ने पाठ कर लैना रोज़, इन्ने बजे उठ जाना है, हजे वो अपना उठना भी हंकार के रूप में दर्शा रहा है, वो व्यर्थ चला जाता। हाँ उवें कोई पूछे दसना वो वखरी गल है, पर किसी को उचेचे तौर पर जाके दसना मैं बड़ा नाम जपदा, पहले 15 पाठ जपजी साहब के कर लेना, 20 पाठ सुखमनी साहब के कर लेना। हुण वो क्यों, वो कहता ये मेरी गल सुनेगा फिर मेरी इज्जत करेगा, भाव मैं ये सिर ते बहना चाहना, गल इन्नी है होर कुछ नहीं। और मनुख दुनिया दे विच हरेक किसी के सिर ते बहना चाहता है, भाव ये मन दे विच मेरी इज्जत होवे, बस ये वास्ते सारे काम हो रहे हैं। भावें दुनियावी तौर पर भावें धार्मिक तौर पर सिर ते बहन की कोशिश है, और कुछ भी नहीं है। महाराज कहते तू आपे गुप्ता आपे प्रगट आपे सब रंग मान, सारे जीवां दे विच वो आप ही है। महाराज तो कहते ने दोहां सिरिया का आप स्वामी, खेलै विकसै अंतर्यामी, ज्यों भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर ना आवे। महाराज किन्ने दोवें साइडा चो आप ही है, चोरां विच भी वो आप है, साधां विच भी आप है। कदी दुनिया ते चोरां दा बोलबाला करा रहिंदा है, कदी साधां दा करा दिंदा है, कदी दुनिया ते जपियां दा बोलबाला हो जाता है, कदी कामियां दा हो जाता है, कदी क्रोधियां दा हो जाता है। ये रब करा रहा है, दोहां सिरियां का आप स्वामी, दोवें साइडा चो आप है। दुनिया दे विच म्यार धर्म की डिग जाती है, ये भी आप है, धर्म उच्चा चुकिया जाए ये भी आप। इस करके जिंदगी दे विच किसी नूं बदलण की कोशिश नहीं करनी, दसिया जा सकता है। महाराज कहते ने अपने आप नूं बदल, आप सवारे मैं मिलै,
मैं मिलिया सुख होए। महाराज कहते फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏ।